In this video, we will learn about bank reconciliation statement wherein we have to find out the differences actually, the statement in which the differences on account of, you can say the differences on various accounts are there in the, you can say balance of the cash book as well as the balance as per shown by, which is shown as per passbook. So these, the differences which are there, these differences can be because of two reasons. Means there can be two types of, because of some errors actually. The two reasons are, means actually there are errors and these errors are of two types, that is known as two reasons can be there. Those differences, or you have, today's topic is also the error. So there are basically two types of errors are there, because of which there is a difference between the balance which is shown in the balance as per cash book as well as the balance which is reflecting in the passbook, or it is also known as the bank statement also. So first of all, we will discuss here what are the various differences, what are the various types of error. Broadly classifying, broadly it is of two types. First is, one is the timing difference. Timing difference. Timing difference, that is on account of difference of time, because the recording of the transactions at a different time period is there. In the cash book it will be recorded in today. In the passbook it may be recorded the next day also, or after few days also. So there is difference in time, the recording time is different, the days are different. So there can be difference because of, you can say the timing difference can be there. And next is the errors actually. Errors. Now this, the timing difference are many. The timing differences are many. Time की वजह से जो differences है, बहुत ढेर सारे differences है, because of, you can say what are the various things which are because of difference in recording of time. And errors. Errors are basically of two types. These errors are, that is, एक error तो आपके दो तरीके के होंगे. First is, that is the, which is caused by the bank, and next is which is by the, you can say accountant of the firm. Means recording in the cash book. One error is recording in the cash book and other error is recording in the passbook. These are two types of error actually. मतलब error by bank actually, you can say error by bank. And next is error by the firm. एरर बाय द फर्म मतलब एरर बाय द बिजनेस. तो दो तरीके के एरर्स हो सकते हैं बेसिकली. एक तो बैंक रिकॉर्ड करने में कुछ गलतियां कर सकता है, दैट इज विल बी कॉल्ड एरर बाय बैंक. अदर कभी कभी अकाउंटेंट विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ सम गलतियां हो सकती है, तो एरर बाय फर्म होगा. नाउ टाइमिंग डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंसेस टाइम की वजह से हो सकते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग के जो डिफरेंसेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल वन, यू कैन से चेक deposited but not collected. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. अब देखिए क्या चीज, चेक डिपॉजिट करना. जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं, मतलब बैंक में चेक के तरफ से डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, दैट इज डेबिट साइड, दैट इज रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक, हम बैंक कॉलम में क्या करते हैं, उसे हम ऐड करते हैं. बैंक कॉलम में क्या चीज होता है, डेबिट साइड, मतलब हम क्या होता है इसमें बैंक कॉलम में हम प्लस करते हैं. जब चेक हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो वी आर एज्यूमिंग, हम ये एज्यूम करते हैं कि अपना बैंक का बैलेंस इतना बढ़ गया. तो चेक हमने डिपॉजिट किया, तो हमने क्या किया कैश बुक में, दैट इज अगेन एक फिर से एक रिमाइंडर आप लोग के लिए कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो हम बैंक कॉलम की बात करते हैं, ओनली बैंक कॉलम. क्योंकि कैश बुक में इट कैन बी, अगर डबल कॉलम कैश बुक है इट मीन्स कैश कॉलम अलग और बैंक कॉलम अलग. अगेन जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करेंगे तो उस समय बस हम लोग बैंक कॉलम की ही बात होगी. तो यहाँ पे जब हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, चेक हम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक कॉलम में, मतलब कैश बुक में हम लोग बैंक कॉलम में प्लस करेंगे, मतलब एडिशन शो करते हैं. नाउ अब डिफरेंस क्या होगा, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. चेक डिपॉजिट हमने बैंक में कर दिया, बट बैंक से वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ. इसका मतलब बैंक ने वो पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में एक्चुअली में डिपॉजिट नहीं किया, मतलब हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया. तो उस केस में क्या होगा, जो पासबुक होगा, पासबुक में क्या चीज हो जाएगा, उतना बैलेंस शो नहीं करेगा, देयर विल बी लेस बैलेंस. हमारे पासबुक में कम बैलेंस, हमने अपने
पास कैश बुक में तो ऐड कर लिया, लेकिन एक्चुअल में अपने पासबुक में वो एडिशन नहीं हुआ। पासबुक इसको बैंक स्टेटमेंट भी कह लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो। तो हमारे अब डिफरेंसेस यहाँ पे ये एक रीजन हो सकता है टाइमिंग का डिफरेंस। आज मैंने चेक डिपॉजिट किया, सेम डे में वो सपोज चेक कलेक्ट नहीं हुआ, मे भी 2-3 दिन लग गया समय, तो हमारे पास सपोज मैंने ये आज चेक डिपॉजिट सपोज 9 तारीख को किया है, 9 सितंबर 2020 को। बैंक ने उस चेक को कलेक्ट किया सपोज 12 सितंबर को 2020 को। तो बैंक हमारे पास, हम अपने पास जो डिपॉजिट का डेट शो करेंगे वो 9 तारीख को शो करेगा, लेकिन बैंक के स्टेटमेंट में वो डिपॉजिट का डेट क्या शो करेगा 12 तारीख को। तो हम जब 9 तारीख का बैलेंस हम लोग चेक करेंगे तो 9 तारीख के बैलेंस अपना क्या शो करेगा, ज्यादा अपने पास बैंक बैलेंस शो करेगा, लेकिन जो पासबुक के हिसाब से जब बैलेंस शो करेंगे तो उसमें वो बैलेंस डिफर हो जाएगा, वहां पे बैलेंस वो शो नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हमारे बैंक और पासबुक में और कैश बुक के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। स्पेशली ये कब डिफरेंस होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ, स्पेशली जिस डेट में हम लोग अकाउंट का बैलेंसिंग बैंक का रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिस दिन में बना रहे उस दिन में सपोज ये 9 तारीख की थी, सपोज हम लोग 9 तारीख को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे, तो हमारे पास ये प्लस तो बैलेंस शो करेगा, लेकिन पासबुक में वो बैलेंस शो नहीं करेगा। तो अगेन हमारे क्या चीज हो जाएगा, वहां पे डिफरेंसेस हमारे पासबुक और कैश बुक का बैलेंस दोनों डिफर करेंगे। ये एक रीजन है। नेक्स्ट हम आते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इसी तरीके से चेक इशू बट नॉट इन कैश। चेक इशू बट नॉट इन कैश, चेक इशू करना मतलब चेक किसी को देना। चेक हमने इशू किया तो हम ये डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक, डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक on behalf of customer, डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्टली डेबिट करना, देखिए आप भी सुन लीजिए, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट का शॉर्ट था, डेबिट और क्रेडिट। बैंक जब हमें डेबिट करता है इसका मतलब हमारे अकाउंट से पैसा निकालता है। जब हम बैंक में चेक जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो बैंक हमें क्रेडिट करता है, मतलब हमारे खाते में पैसे को जमा करता है। तो जब हम डेबिट की बात करें, डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक, मतलब बैंक ने डायरेक्ट डेबिट किया, मतलब हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ है। बैंक क्रेडिट करेगा मतलब प्लस, बैंक अगर से डेबिट करेगा मतलब माइनस, बैंक क्रेडिट करेगा तो हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा ना। डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ, हमारे बिहाफ में, जो कस्टमर का अकाउंट है, जिनका अकाउंट है बैंक में, उनके बिहाफ में कभी कभी बैंक डायरेक्ट डेबिट करता है। डायरेक्ट डेबिट क्यों करता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मे बी वी हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन, बैंक को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमारे EMI को या लोन को हमारे एवरी मंथ के एंड में आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो हमारे बिहाफ में डायरेक्ट मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एक तरह से इंस्ट्रक्शन बैंक को पहले से दिया रहता है कि एवरी मंथ के एंड में हमारे अकाउंट से इतना पैसा आप रिकरिंग डिपॉजिट में जमा कर दीजिए। तो हमारे अकाउंट से उतना पैसा कट के दूसरे अकाउंट में जमा हो जाएगा, किसी और अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो हमारे अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट होता है फ्रॉम बैंक। अब बैंक डेबिट करना मतलब क्या चीज होता है, हमारे अकाउंट से पैसे क्या होगा, डिडक्ट होगा। अब हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा मतलब क्या चीज होगा, पासबुक में ये होगा। बैंक करेगा तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, बैंक पासबुक में। लेकिन हमने कैश बुक में अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि हमारे ध्यान में हो सकता है वो चीजें ना हो, बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया हो, लेकिन हमें पता नहीं लगा कि हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकला। तो हमारे कैश बुक में क्या शो करेगा, वो बैलेंस, कैश बुक में बैलेंस अपना ऐड उतना ज्यादा शो करेगा। बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट से सपोज कुछ पैसा निकाल के पेमेंट कर दिया, क्योंकि हमने बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन देकर रखा हुआ था। अब हमें उस डेट में हमें याद तो नहीं रहेगा कि हमें भी माइनस करना, तो हमारे अकाउंट में बैलेंस जो कैश बुक में हमारे जो बैलेंस रहेगा वो ज्यादा शो करेगा और अपना जो पासबुक का जो बैलेंस रहेगा वो कम शो करेगा। अगेन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है
ये हमारे जो कस्टमर है, हमने किसी को सामान उधार बेचा और हमारे रेगुलर उनसे टर्म्स वगैरह आए, तो अपना अकाउंट नंबर भी उनको देके रखा। उन्होंने कह दिया ठीक है आप सामान भेज दीजिए, आपको मैं डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दूंगा। ठीक, उन्होंने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो अब हमारे लिए क्या होगा, पासबुक में उन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, तो पासबुक में क्या होगा, पैसा ऐड हो जाएगा। उन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे अकाउंट में, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। लेकिन हमें क्या है, कैश बुक में हमें पता नहीं है। उन्होंने सपोज हमें फोन करके बताया नहीं कि हाँ आपके अकाउंट में मैंने पैसा भी जमा कर दिया, तो हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं रहेगी। तो हमारे कैश बुक में क्या चीज होगा, बैलेंस हम लोग तो ऐड शो नहीं किया, तो अपना कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। अगेन हमारे क्या हो जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन, मतलब हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस होगा। पासबुक का बैलेंस ज्यादा क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, तो बैलेंस अपना बढ़ जाएगा, लेकिन अपना कैश बुक का बैलेंस एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगेन बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, interest and dividend collected by bank. Now bank charges, बैंक कुछ चार्ज कर रहा है, बैंक हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर प्रोवाइडिंग दो सर्विस बैंक क्या करेगा, कुछ पैसा हमसे चार्ज करेगा, मतलब अपने अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्शन होगा। तो बैंक चार्जेस होगा तो क्या हो जाएगा, पासबुक में उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी। बैंक अपने पास क्या करेगा, अपने अकाउंट से हमारे अकाउंट से पैसे को डिडक्ट करेगा, लेकिन कैश बुक में हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है बैंक ने कितना चार्ज किया। तो हमारे कैश बुक में क्या चीज होगा, बैलेंस एज इट इज शो करेगा, बैलेंस अपना कम नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे भी क्या चीज हो जाएगा, अपना पासबुक और कैश बुक का बैलेंस डिफर करेगा, क्योंकि बैंक ने कुछ चार्जेस किया, बैंक ने कुछ पैसा हमारे अकाउंट से डिडक्ट किया है, लेकिन हमें पता नहीं, मतलब हमने कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो अगेन हमारे लिए क्या चीज हो जाएगी, हमारे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफर करेगा ना। ये भी चीजें अलग से है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट और डिविडेंड। अब मैंने अगर से एक पैसा बैंक में जमा करके रखा हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है रेगुलर बेसिस पे, 3 महीने 6 महीने पे इंटरेस्ट या ईयरली इंटरेस्ट देता है। अब जब बैंक इंटरेस्ट देगा तो हमारे खाते में क्या चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अकाउंट में प्लस कुछ बैलेंस रहेगा, मतलब ये प्लस कहाँ हो जाएगा, पासबुक में बैंक एंट्री करेगा। बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो बैंक हमारे अकाउंट में उतना पैसा ऐड कर देगा। अगेन कभी कभी डिविडेंड भी देते हैं। डिविडेंड मतलब इन्वेस्टमेंट, जब हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जब हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, अब देखिए डिविडेंड का डिफिनेशन भी देख लीजिए। जब हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, हम किसी कंपनी का शेयर्स परचेज करते हैं, तो कंपनी जिस कंपनी का शेयर्स मैंने परचेज किया, वो प्रॉफिट का कुछ पैसा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने शेयर होल्डर्स को, और उसे डिविडेंड कहते हैं। तो ये डिविडेंड हमें जब शेयर्स परचेज किया, तो हमने अकाउंट नंबर भी देके रखना होता है कंपनीज में कि हमारे अकाउंट में जो भी डिविडेंड या पैसा भेजना होगा इस अकाउंट में भेजना। तो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी हमें डिविडेंड देगी वो हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगी। देखिए, तो या तो इंटरेस्ट हमारे खाते में भी प्लस होगा, डिविडेंड भी डायरेक्टली जो कंपनियां भेजती है हमारे अकाउंट में भेज देती है, तो वो भी प्लस होगा। तो अपना पासबुक का बैलेंस क्या चीज होगा, बढ़ा हुआ शो करे। लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि हमें इंटरेस्ट भी मिला या डिविडेंड भी मिला, तो हम कैश बुक में तो कोई रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो कैश बुक में अपना बैलेंस कम शो करेगा। अगेन पासबुक और कैश बुक का अगेन देयर विल बी डिफरेंस, बिकॉज पासबुक में तो बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो गया है, लेकिन हमें पता नहीं है, इसीलिए कैश बुक में हम लोगों ने एंट्री नहीं की हुई है। तो पासबुक और कैश बुक का अगेन देयर विल बी सम डिफरेंसेस राइट। तो ये सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस वगैरह मतलब एराइज होते हैं। अगेन ये मैंने पहले ही बता चुका है, देयर इज ए कैन बी एरर, देयर इज समटाइम एरर व्हिच इज कमिटेड बाय द बैंक एंड समटाइम एरर व्हिच इज कमिटेड बाय द फर्म। तो ये दीज आर द रीजन फॉर डिफरेंसेस, दैट इज कैश एंड कैश बुक एंड पासबुक में वो डिफरेंसेस के जो रीजन है, ये सारे आपके रीजंस हैं ना। अब इससे एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको बहुत इजी है, जो फॉर्मेट आपको मैंने बताया था उसी फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना है। उसमें 2 कॉलम है, तो पर्टिकुलर देन अमाउंट प्लस एंड अमाउंट माइनस, 3 कॉलम्स हम डिवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग लिखना चाहते हैं। अब ना एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस चाहिए, किसी एक चीज का बैलेंस चाहिए। हमें क्या है, बैलेंस में क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, कोई एक बैलेंस हमें चाहिए होता है। स्टार्टिंग हम लोग कहां से करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, कोई एक इसमें से हमें अवेलेबल होना चाहिए। और हम फाइनली हम कहां पे पहुंचते हैं, सपोज हम बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किए हैं तो हम बैलेंस एज पर पासबुक में पहुंचेंगे। इनकेस हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किए तो बैलेंस एज पर कैश बुक में पहुंचेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या चलेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, कोई एक बैलेंस अवेलेबल हमारे पास रहेगा। और जो हम लोग फाइनल जो एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे वो दूसरा बैलेंस आपको शो करेगा, या कैश बुक का बैलेंस से चलेंगे तो हम पासबुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे, पासबुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे। पासबुक के बैलेंस से अगर से चलेंगे तो हम लोग कैश बुक के बैलेंस के पास पहुंचेंगे। ये अपना बैलेंस फाइनली अपना होगा। और ये बैलेंस जो अपना टैली भी करना चाहिए, मतलब पासबुक में क्या बैलेंस है, हम लोगों ने अगर से पासबुक का बैलेंस किया था तो हमें क्लोजिंग में कितना कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए ये डिसाइड हो जाता है। यहाँ पे हम लोग फाइनली आंसर पहुंचे। तो ये एक चीज हो गई। अब ये स्टार्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये चार टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं, बैलेंस एज पर कैश। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की चीज है, कैश बुक इसको favorable balance, unfavorable, balance, debit balance, debit balance, डेबिट बैलेंस। नाउ अब ये चार टाइप के बैलेंसेस हमारे क्वेश्चन में दिए रह सकते हैं। फेवरेबल बैलेंस सपोज एज पर पीबी, सपोज पासबुक, पीबी मैंने शॉर्ट में लिखा पासबुक, लिख देते हैं पासबुक। इसी तरह अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, इसी तरह डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नाउ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नाउ फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब अपना पॉजिटिव बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होगा, और या तो आप कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस या सिंपली कह लीजिए क्रेडिट बैलेंस को ही कहते हैं। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस और या तो क्रेडिट बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है निगेटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है निगेटिव बैलेंस। इसी तरह डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है निगेटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। ये सब फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों क्या चीज होती है, पॉजिटिव बैलेंस होती है। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब ये चीज होता है कि पासबुक में फेवरेबल बैलेंस है, मतलब पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। इसका मतलब बैंक में अपना पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमने जितना बैंक में जमा किया उससे कम ही निकाला, मतलब मेरा पॉजिटिव बैलेंस वहां पे है, हमारा पैसा कुछ बैंक में पड़ा हुआ। तो फेवरेबल मतलब हमारे पक्ष की बात, तो हमारे फेवर की बात है। फेवरेबल बैलेंस पासबुक, और पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। तो बैंक में जो खाता है उसमें मेरे फेवर के लिए है, मेरे फेवर में चीजें, मतलब मेरे पैसा बैंक में मतलब पड़ा हुआ है ना।
अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, मेरे फेवर में नहीं है, पासबुक का जो बैलेंस है मेरे फेवर में नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैंने पैसा जितना बैंक में डिपॉजिट किया उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया या निकाले, एक तरह से मैंने लोन कंपनी से ले लिया, मतलब बैंक से लोन लिया हुआ है या बैंक से ज्यादा पैसा मैंने निकाल लिया, जिसको ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। ओवरड्राफ्ट सिंपली कह लीजिए, जो ओवरड्राफ्ट भी है मतलब आपने जितना पैसा निकाल लिया उससे ज्यादा, जितना मैंने जमा किया था उससे ज्यादा मैंने पैसा निकाल के रखा हुआ, या ओवरड्राफ्ट भी आप इसी को कह सकते हैं कि हमारे फेवर का नहीं है। जो पासबुक का बैलेंस है पासबुक बैंक मेंटेन करता है, और जो बैंक के पास जो हमारा खाता है वो अनफेवरेबल है, हमारे फेवर में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है। इसका मतलब हमने ज्यादा पैसा निकाल के रखा हुआ, बैंक को पैसा वापस करना। नाउ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं, कैश बुक फर्म मेंटेन करता है, बिजनेस को भी कैश बुक मेंटेन करता है। और डेबिट बैलेंस, अब आप लोग ये याद रखें कि डेबिट साइड में क्या चीज हम लोग लिखते हैं कैश बुक पे, रिसीट साइड मतलब अपना पैसा रिसीट, और क्रेडिट साइड में हम लोग पेमेंट लिखते हैं। तो जब डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब अपने पास रिसीट ज्यादा है, और पेमेंट का मतलब अपने पास पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस या डेबिट साइड, रिसीट साइड ही डेबिट साइड होती है, रिसीट साइड ही डेबिट साइड होती है, और पेमेंट साइड क्या होती है, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड होती है। तो रिसीट अपना ज्यादा, डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस मतलब क्या चीज हुआ, डेबिट साइड ज्यादा होना, और डेबिट साइड ज्यादा होना मतलब अपना रिसीट ज्यादा, पेमेंट का मतलब पैसा अपने पास पड़ा हुआ है, हम लोगों ने जितना पैसा भेजा था उससे कम पेमेंट किया है, तो डेबिट बैलेंस है, तो पॉजिटिव है। एक क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नाउ दिस क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब मेरे अकाउंट में जितना पैसा है वो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब आपने पेमेंट ज्यादा कर दिया, क्रेडिट साइड मतलब आपने पेमेंट ज्यादा कर दिया, तो पेमेंट ज्यादा कर आपके पास जितना पैसा आता है उससे ज्यादा आपने क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट हो गया, ये आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया या ओवरड्रा कर लिया, पैसा आपने ज्यादा बैंक से निकाल लिया है, तो आपका अकाउंट क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा, पेमेंट ज्यादा कर दिया, जितना पैसा था उससे ज्यादा पेमेंट, तो बैंक में जितना पैसा था उससे ज्यादा पेमेंट करने का मतलब आपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। ये चार कंडीशन आपके क्वेश्चन में दी जा सकती है, फेवरेबल बैलेंस रहेगा तो अनफेवरेबल बैलेंस रहेगा। पासबुक का तो क्या करना है, अगर प्लस साइड में है तो हम लोग प्लस कॉलम में लिखेंगे, माइनस साइड है तो माइनस कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इसका कैश बुक होगा, तो प्लस और माइनस हमें ट्रीट कैसे करना है ये आपको याद करना है। देन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन एक्चुअल में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो।